Hello friend, this is Mohammad Sohail and you are watching my channel Online Study. Today, in the last class we have discussed the concept about labor management and what is labor cost and what are the different types of labor cost like direct labor cost and indirect labor cost. And we should have learned some basic formulas of how to calculate different labor cost. We have done as that we had to calculate how to calculate Halsey premium plan, and we should also done how to calculate Rowan plan of calculating wages, and we should also discuss about how to calculate effective wage rate. We should told you students that the effective wage rates can be calculated by dividing total wages divided by time taken. It should be used in calculating effective wage rate. Today we should discuss about a little more topic about labor management and calculating labor cost. Students, in many times in an examination it is oftenly asked to calculate total cost and profit. So in HS examination the sums was asked till work cost, sometimes it is asked till cost of production, and sometimes it should be asked in an examination to calculate total cost and then profit. So I have prepared a simple cost sheet that you have learned in class 11. The sum that I am doing now, it should be helpful for both, for the class 12 examination, for commerce stream, and for the second semester also. So in this chapter we should try to do and solve the sums that is also helpful to the class 12 and become second semester as well. So यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक सिंपल सा राइट हैंड साइड में एक अमाउंट रुपीज़ का कॉलम बनाया है, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग किस तरीके से टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं. तो ये मटेरियल है जो सम्स में दिया रहता है, और ये लेबर है जो हम लोग कैलकुलेट करके अंडर डिफरेंट प्लान्स कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज़ आल्सो गिवन इन द सम्स, और ये तीनों को ऐड करने के बाद आपको पता है कि प्राइम कॉस्ट आता है. प्राइम कॉस्ट इज़ द सम टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. देन कभी जैसे HS के एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है टू कैलकुलेट वर्क कॉस्ट. तो द वर्क कॉस्ट आर कैलकुलेटेड बाई ascertaining प्राइम कॉस्ट and then adding factory overhead. If we add factory overhead to the prime cost, then we get work cost. And then इसके बाद कभी सेकेंड सेमेस्टर वगैरह के अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें अगर लेबर वगैरह चैप्टर से अगर सम्स दिए जाते हैं तो वो कभी कभी ऑफिस ओवरहेड दे करके वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने को बोलता है या कैलकुलेट करने के लिए बोलता है. सेलिंग ओवरहेड दिया रहता है तो टोटल कॉस्ट, एंड देन वो से प्रॉफिट डिटरमाइन करने बोलता है और सेल्स दे देता है. तो ये आपका सिंपल एक कॉस्ट शीट था जो कि बहुत ही बार एग्ज़ाम में वर्क कॉस्ट निकालने के लिए या टोटल कॉस्ट निकालने के लिए या फिर डिटरमाइन डिफरेंट कॉस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं. सो टुडे फ्रेंड, एज आई प्रॉमिस दैट वी शुड डू अ सिंपल सम्स ऑन लेबर. तो आई हैव टेकन अ सिंपल सम्स दैट इज़ helpful for both the class 12 students and as well as for BCom second semester students. So student, I have taken a simple sums, and with the help of these sums I will able to make you people understand that how we should calculate wages and effective hourly rate both under Halsey premium plan and under Rowan premium plan. It is the two sums, the two formula Halsey and Rowan, and the sums on these two sums are frequently asked. That two formula should be frequently asked in an HS examination and in the BCom second semester both. So friend, I am reading the question, just focus because it is one of the easiest sums, and ये sums HS के एग्ज़ाम में भी आया है. आपको बहुत आश्चर्य होगा ये सुनकर, और ये सेम सम्स BCom लेवल पे भी आया है. तो देखिए सम फ्रेंड क्या बोला है क्वेश्चन में. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एसरटेन द टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है ऑफ ईच वर्कर सेपरेटली. मतलब दो वर्कर्स यहाँ पे दिया हुआ है, एक अमल दूसरा विमल, दोनों का टोटल अर्निंग कैलकुलेट करने बोला है अंडर रोवन प्रीमियम प्लान, Halsey premium plan, Rowan premium plan and
उसका आवरली इफेक्टिव आवरली रेट भी कैलकुलेट करने बोला है। तो इन द लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला ऑफ हेल्सी प्रीमियम प्लान। देखिए सबसे पहले तो इस सब चैप्टर्स में आपको प्रेजेंटेशन का बहुत ही खास ध्यान रखना पड़ता है। सो आई हैव गिव अ हेडिंग रोमन 1 दैट कैलकुलेशन फॉर वेजेस एंड इफेक्टिव आवरली रेट अंडर हेल्सी प्रीमियम प्लान। So what is the formula, students? Please write it down on the comment that I have told you in my last class, that the formula of healthy premium plan is time taken. TT stands for time taken, and time taken into hourly rate plus 50% of time saved into hourly rate. That is the formula, students, and we should have to calculate for both Amal and Bimal simultaneously. That I have written the formula. I have also told in the last class that this is the wages part and this is bonus part. So before starting the sums, I will help you to determine that how we should calculate time saved. As you see in the sums, time allowed is given, time taken is given. So how you should determine time saved? Time saved को TS से डिनोट करते हैं। और ये कैसे कैलकुलेट होता है? टाइम अलाउड से अगर हम लोग टाइम टेकन को डिडक्ट कर लेते हैं, अगर टाइम अलाउड से टाइम टेकन को डिडक्ट कर लेते हैं तो मेरा टाइम सेव निकल जाता है। अगर ये अमल को टाइम अलाउड 100 आवर्स किया गया है और अमल ने वही काम को 40 आवर्स में कंप्लीट कर लिया है तो ये अमल टाइम सेव 60 आवर्स करता है। ठीक साइमल्टेनियसली फ्रेंड, अगर आपको दिख रहा है तो बिमल को टाइम अलाउड TA 50 किया गया था, बिमल ने टाइम टेकन मतलब टाइम लिया 40, तो बिमल का टाइम सेव सिमिलरली 10 आवर्स हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड। टाइम अलाउड जो अमल का है वो 100 आवर्स है, टाइम टेकन अमल का 40 आवर्स है, तो टाइम सेव जो होगा अमल का वो 60 आवर्स होगा। ठीक उसी तरीके से बिमल का टाइम अलाउड 50 आवर्स है, टाइम टेकन 40 आवर्स है, देन बिमल का टाइम सेव 10 आवर्स होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आवरली रेट, HR मतलब होता है आवरली रेट। ये सम्स में आपको दिख रहा है ये आवरली रेट है। अमल के लिए 2 रुपया पर आवर है और बिमल के लिए भी 2 रुपीज़ पर आवर है। अब हम लोग आते हैं सम में क्या बोला है स्टूडेंट्स, अगर आप देख रहे हैं TT इंटू HR, ये आपको फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा या फिर आप बार बार रेगुलर प्रैक्टिस आप फार्मूला सीख भी सकते हैं। TT इंटू HR प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू आवरली रेट। TT इंटू HR प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू आवरली रेट। आपको मैंने बताया था कि अगर हेल्सी प्रीमियम प्लान बोलता है सम में यूज़ करने के लिए और कुछ नहीं बोलता है तो हमेशा 50% लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने अमल का कैलकुलेट किया है 40, टाइम टेकन आपको यहाँ पे दिया हुआ है TT 40 इंटू आवरली रेट, यहाँ पे आपको आवरली रेट दिया है 2, तो TT इंटू HR प्लस 50% ये फार्मूला का जो हम लोग यूज़ करेंगे वो है। इसके बाद ये 60 टाइम सेव्ड, अमल ने टाइम सेव्ड 60 किया है और अमल का आवरली रेट 2 रुपया है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा। अब देखिए इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 इंटू 2 80 आता है और 60 इंटू 2 120 एंड उसका 50% 60 आएगा। तो दोनों को एडअप करने के बाद ये मेरा अमल का वेजेस हो गया एज़ पर हेल्सी प्लान। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं फिर से आपको बता रहा हूँ TT अगर आप देखेंगे सम में तो TT इज़ गिवन 40 आवर्स and hourly rate is also given ₹2 plus 50% of time saved. How we should calculate time saved? Again I am saying the time saved should be calculated by deducting time allowed minus time taken. So from 100 we should deduct 40, we should got 60. And 60 into 2 it should be 120 and 120 50% of the 120 is 60. That is 80 plus 60 is equal to 140. That is the wages as per healthy plan of अमल। देन सिमिलरली बिमल के केस में भी अगर आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। बिमल का भी टाइम टेकन 40 है, बिमल का भी आवरली रेट 2 है और यहाँ पे 50% सम्स का यूज़ किया है मैंने। और लेकिन बिमल का आप टाइम सेव देखेंगे तो वो 10 होगा और आवरली रेट 2, उस वजह से 40 इंटू 2 80 हो जाएगा और 10 इंटू 2 20, उसका 50% 10, तो 90 इज़ द वेज रेट ऑफ बिमल। जैसे मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव आवरली रेट, हाउ वी शुड कैलकुलेट इफेक्टिव आवरली रेट। इफेक्टिव आवरली रेट शुड बी कैलकुलेटेड
by taking total wages divided by time taken. So what is the total wages of Amal? टोटल वेजेस हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 150 एंड टाइम टेकन सब में दिया हुआ है 40. अगर आप टोटल वेजेस को टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे तो ये आपका पर आवर जो है इफेक्टिव आवर्ली रेट्स ₹3.50 आएंगे. क्यों आए ये क्यों आया? अगर आप सोचते हुए कि आवर्ली रेट ₹2 दिया हुआ था और इफेक्टिव आवर्ली रेट्स ₹3.5 हुआ, बिकॉज अमल ने जो जॉब परफॉर्म किया, जो काम किया, वो एज़ पर द गिवन सिचुएशन उन्होंने उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से काम किया, इसलिए उनका जो ₹2 का आवर्ली रेट था वो अल्टीमेटली इंटर्न ₹3.5 में चेंज हो गया. फिर विमल का भी उसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे. विमल का इफेक्टिव आवर्ली रेट विमल का जो टोटल वेजेस है वो 90 है एंड विमल को विमल का टाइम टेकन जो है वो 40 आवर्स, इसलिए विमल का इफेक्टिव आवर्ली रेट जो होगा 2.25 होगा, क्योंकि विमल ने टाइम सेव किया है बट नॉट एज गुड एज अमल. ठीक है, अब ये था सम्स ऑन हेल्सी प्रीमियम प्लान. अब इसी सेम सम्स को मैंने रोवन प्रीमियम प्लान के साथ भी किया है, तो चलो उसको हम आपको दिखाते हैं. स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रोवन का फॉर्मूला को हम लोग प्रोपोर्शनेट प्रीमियम प्लान भी कहते हैं. सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब होता हो. देखिए यहाँ पे अंडर रोमन प्रीमियम प्लान द वेजेस शुड बी कैलकुलेटेड एज बाय टेकिंग TT into HR प्लस टाइम सेव दैट शुड बी डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू TT into HR. अब अमल का जैसे आपको पता है टाइम टेकन इज़ गिवन, आवरली रेट इज़ ऑल्सो गिवन, टाइम सेव इज ऑल्सो गिवन, टाइम अलाउड इज ऑल्सो गिवन, TT ऑल्सो गिवन टू, तब आवरली रेट इज़ ऑल्सो गिवन. ठीक है, so if we multiply 40 into 2 that should comes 40, 80 and time saved should be divided by 100 with your calculators. आपके पास तो कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं. एंड देन वी शुड मल्टीप्लाई 40 into 2 then it comes 48 and when we should add up that it comes to 128. अगर हम लोग रोवन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो बाई अप्लाइंग रोवन प्रीमियम प्लान वी शुड कैलकुलेट वेजेस एज पर द गिवन formula. What is the formula? TT into HR plus time saved is divided by time allowed into TT into HR. ठीक है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आपको टाइम टेकन दिया हुआ है, आवरली रेट इज़ ऑल्सो गिवन, टाइम सेव्ड इज़ ऑल्सो गिवन एंड टाइम अलाउड इज़ ऑल्सो गिवन. वी शुड सिर्फ फॉर्मूला में पुट करके हम लोगों ने आंसर निकाल लिया. ठीक, उस तरीके से हम लोगों ने विमल का भी किया. देखिए 40 into 2 10 डिवाइड बाई 50 इंटू 40 into 2. एकदम सिंपल सम्स है, एकदम सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व किया है. आपको दिखता होगा यहाँ पे 80 आया है 40 into 2 और यहाँ पे 16 आया है. देन दोनों को ऐडअप करने के बाद ये 96. अब देखिए फ्रेंड, टोटल इफेक्टिव आवर्ली रेट मैंने यहाँ भी कैलकुलेट किया है. ये मतलब 2 सम्स है बट हम इसको आपको सिंपल तरीके से सुनाने के लिए मैंने एक ही 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एक ही सम में उसको मर्ज कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए. तो आपको दिखता होगा यहाँ पे इफेक्टिव आवर्ली रेट, क्योंकि यहाँ पे रोवन प्लान में बिल्कुल अलग इफेक्टिव आवर्ली रेट आया है. यहाँ पे 128 आया है टोटल वेजेस अमल का एंड अमल ने टाइम टेकन तो सेम था, तो इसलिए अमल का एज़ पर रोवन प्रीमियम प्लान 3.2 आया है. देन अगर हम विमल की बात करें तो विमल का 96 हुआ है टोटल वेजेस एंड विमल ने टाइम टेकन 40 आवर्स लिया है, तो विमल का इफेक्टिव आवर्ली रेट इस सम के हिसाब से रोवन प्रीमियम प्लान के हिसाब से 2.50 होगा. सो फ्रेंड, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ 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 इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ये चैनल और भी मजबूत हो जाए. थैंक यू.